So, Bipulji, I'll put you in the spotlight along with Swamiji. I'll ask you to unmute. You can, in short, tell about your problem. Pranam Swamiji. Pranam. I am 52 years and I have been diabetic for over 25 years now. I have been continuing medicines, but somehow it has not worked. And though I still continue on my medication, I am into yoga. I'm into brisk walking because my work also involves a lot of sitting through the day. So I tend to do yoga, and yoga is something which I was not used to at all. It's just been about a month that I've started on yoga. Else, I used to do some workouts every now and then. My job also involves a lot of traveling, and so there's a lot of differences in the food that I consume whenever I'm traveling. I cannot stick to a restricted diet unless I'm at home. So maybe that is the lifestyle which has prevented me from my diabetes being controlled or being going down. So it's for the last 2.5, 3 years or so, I have got stuck at about 150, 155 levels of sugar on fasting. Okay. So let's see. If you understand what is the problem, because diabetes, nobody knows what is diabetes. You are checking your sugar level by reducing the sugar levels in your blood. Nobody has come out of diabetes. So what are you doing? No, common sense. If sugar level is diabetes and you are pulling it down, you can pull it down through many ways, but your doctor says that you have to take that metformin or glibenclamide, gliclazide, rosiglitazone, whatever. You are pulling down through some chemical. But nobody has come out of diabetes by pulling down the sugar level. In fact, they have gone into organ damage. There can be a research which says a person who is controlling the diabetes by taking pills and another person who is controlling the diabetes by not taking pills, the second population, the survival will be more. ठीक है? And I know many people. So if you're controlling the sugar level and nobody knows what is diabetes, obviously there is no solution. In the last 100 years, nobody has been come out of diabetes by controlling the sugar level. So what are you doing? क्वेश्चन आपके लिए मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम इन यू? व्हाट इज द प्रॉब्लम इज नॉट द sugar level but adrenal fatigue. You have an anxiety issue. You have an issue where your body says that it's a risky environment within yourself. बहुत जल्दी बॉडी में रिस्क आता है, तो adrenal overactivity happens. Because of that, the body tries to protect itself by throwing out a little sugar and increasing the blood pressure. In most of the people, it does that. Now, in some people, they can see the sugar level. In some people, they can see blood pressure fluctuation. So within you, you might be seeing it through your sugar level, that too fasting. And that too fasting. Fasting sugar level usually means adrenal fatigue. Now, I'll tell it in a different manner where it can be corrected. अगर आप इस तरीके से डिफाइन भी करेंगे तो भी ठीक नहीं होगा. द वे यू आर डिफाइनिंग योर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, वॉट एवर डिजीज, उसका सोल्यूशन नहीं है. अभी मैं आपको डिफाइन करता हूं, ठीक है? नाउ इफ यू इनहेल फॉर अ सर्टन अमाउंट नंबर ऑफ काउंट, से यू इनहेल फॉर 8 काउंट, 8 seconds. Now ideally you should have the strength to hold it for 4 times more, at least 4 times more. That means 36 seconds. And after holding it, if you are able to exhale for 16 seconds without difficulty,
Then something called as Vyana. You have Vyana Shakti. You have Vyana Shakti. Vyan means uh, the dynamism within your body, the way organs function, the control of function of organs in your body. Vyana also maintains the structural strength of human being. So Vyana, what is Vyana? It is basically the exhaling strength after you have done an activity. That means it is also a relaxing strength. The ability of this body to relax. Usually, Vyana person who has a Vyana problem, they are always looking at a target. They are always looking at finishing a target. They can't relax themselves. If they can activate themselves, but they can't relax themselves. In those people, the diastolic blood pressure, if you see, is always a little high. Not everyone, but many people, in many people. Vyana Shakti, if it goes, if it is not strong, then what will happen? The detox factor of the body will be hampered, will be weak. It also means the cellular expulsion of toxins, whatever is not required, is also weak. It also results to glucose intolerance ultimately. So this Vyana Paksha or the Vyana Shakti has to be increased in your system. And people who have weak Vyana Shakti, they usually easily get into some pain factors in the body. Pain easily happens in their system. Uh, you'll see after a certain period of time, if it remains weak, there will be neuropathy. There will be neuropathy. Neuroregeneration will be weak. And I can correlate it with many, 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 many things. Some things you might correlate with, but this is a sequence of how things happen in the body. So where is the problem? I said you can Google adrenal overactivity. You'll find some uh, content related to adrenal overactivity. But then adrenal overactivity within you is due to weak Vyana Shakti. So what becomes the solution? You enhance the Vyana Shakti, improve the Vyana Shakti, and you will come out of this in a certain period of time. Because time cannot be fixed for everybody. Everybody responds to everything in a different manner. And depending upon the momentum of difficulties that has happened within the system, there will be a little time the threshold time will be different for different people. But yes, uh, confidence, tolerance, these are few things that you'll see will improve within 3 to 6 months. And this empty stomach, high sugar level, and your adrenal fatigue both can be correlated with uh, anxiety situations. You'll see a drastic improvement in 3 to 6 months. Darshana Mahidhar, are you suffering from diabetes? Darshana, can you give me a thumbs up? ओके सो मैं आपको स्पॉटलाइट में डालता हूं. आप आप अनम्यूट करेंगे और अपने बारे में बताएंगे. Darsha is my spouse. Can I speak? हाँ बोलिए 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 प्लीज. हमारे आज ही रिपोर्ट निकाले. मैं भी डायबिटिक हूँ, पर मुझे ब्लड प्रेशर भी 20 साल से है. तो मुझे भी ज्वाइन करना है, पर मेरे को पता चला कि दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा. ये डायरेक्ट डायबिटीज में नहीं होगा. दर्शना आपने का आपने हाँ डिटेल शेयर किया था अपना? हाँ किया था. मैंने सबसे पहले किया था, पर मुझे कुछ ठीक है आया नहीं. ठीक है ठीक. तो दर्शना का ऐसा था कि हमने आज ही रिपोर्ट निकाले हैं, और आज उसको डायबिटीज तो 6.7 आया, HbA1c, जो कम है पहले से, सबसे कम अभी तक में.
हम्म। लेकिन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर DL यूरिन में ग्लूकोज है। तो इज इट वरिंग और शुड वी गो फॉर फर्स्ट मेडिकल दिस थिंग और स्टार्ट विथ कुंभक एंड इट विल रिड्यूस सब्सिक्वेंटली? हम्म। देखो, एक चीज आप सबको बहुत अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। हाँ। सबके पास में विजडम है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा आपको समझ है, उसको यूज करें। आपका शरीर जिंदा है ना, अपने आप को ठीक करता है, अपने आप को मैनेज करता है, ऑर्गन फंक्शन करता है, सारा सब काम आपका शरीर करता है। आपको मालूम नहीं भोजन खाने के बाद में वो क्या हो रहा है, लेकिन आपके बॉडी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज कीजिए आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, यूटिलाइजेशन कम हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया। अब ये शरीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो तो एक तरीके से ज्यादा ग्लूकोज टॉक्सिन जैसा काम करेगा ना, यूज नहीं होगा तो उसके लिए अनयूजेबल है हो गया। तो क्या करेगा? आपके घर में कोई सामान अगर आप काम का नहीं होता तो आप उसे बाहर निकाल देते हो, शरीर भी उसे बाहर निकाल देता है। तो क्या अच्छा काम कर रहा है आपका शरीर, ये गलत काम कर रहा है? अच्छा। अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई आपको गलत बता रहा है उसी के बारे में कि ये गलत हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया, जो वो आपको बोल रहे हैं कि यूरिन में शुगर आ गया तो गलत हो गया। अब वो क्या कहते हैं कि ये टैबलेट खा लीजिए। हम्म। अब वो टैबलेट जैसे ही आप खाते हैं, शरीर को वो ग्लूकोज नहीं लेना था, इसीलिए ऑर्गन्स ने, टिश्यूज ने वो ग्लूकोज नहीं लिया ब्लड से, तो ब्लड में वो ज्यादा दिखता है। अब जबरदस्ती करके आपने एक मेटफॉर्मिन खा लिया और टिश्यूज के वो रिसेप्टर जो ब्लॉक कर रखा था उसने, उसको खोल दिया जबरदस्ती। अभी आपका शुगर कहां गया? हार्ट में गया, लिवर में गया, किडनी में गया, यूरिन में कम हो गया। तो सामने वाला बंदा कहता है देखो आपको ठीक कर दिया मैंने। आपने अच्छा काम किया, गलत काम किया? अब आप बताइए, शुगर जो कि यूजेबल नहीं था आपके शरीर के द्वारा, उसको आपने हार्ट में डाल दिया, लंग्स में डाल दिया, लिवर में डाल दिया, लिवर के टिश्यूज में, किडनी के टिश्यूज में डाल दिया। अब आपका ये ऑर्गन खराब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जो भी शुगर लेवल कम कर रहा है, आगे चल के उसका ऑर्गन डैमेज होता है ना, होता है ना। सबका ऑर्गन डैमेज होता है। कोई भी ग्लूकोज कंट्रोल करके हेल्दी तो नहीं रह पा रहा। आप समझो, दुनिया में डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? अगर जो नैरेटिव आपको बताया जा रहा है, अगर वो नैरेटिव अच्छा होता तो दुनिया में डायबिटीज ठीक हो जाती, आपकी लाइफ भी ठीक हो जाती। जो लंबे समय तक डायबिटीज हैं, 20 25 30 40 साल, उनकी लाइफ में जाके देखो, क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया? उनको एक के बाद एक प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? और 100 साल, 3 जनरेशन पीछे चले जाओ अपनी फैमिली ट्री में, किसको था डायबिटीज? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? डायबिटीज से किसको कॉम्प्लिकेशन हो रहा था? तो एक पार्ट तो ये है कि जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है आज का, वही डैमेज कर रहा है। क्योंकि देखो, लॉजिक से अगर आप लाइफ को डिकोड कर देते हो, सारी दुनिया हेल्दी हो जाती। लॉजिक तो 10 तरीके के हो सकते हैं, आप मेरे लॉजिक को तोड़ के दिखाओ, आप भी समझ सकते हो इस चीज को। क्या आपको नहीं समझ में आ? लेकिन अगर आप बोलो कि ये शरीर तो जिंदा है ही नहीं, अब आप कहेंगे नहीं तो मुझे ही करना है इसको ठीक, शुगर हुआ तो मुझे ही कम करना है, डाइजेशन मुझे ही करना। अब्रामिकल थॉट प्रोसेस है ना। शरीर को जिंदा ही नहीं मानते, उसी से एलोपैथी निकल के आ गया। तो अगर आप अपने शरीर को जिंदा ही नहीं मानोगे तब वो लॉजिक काम करता। अगर आप अपने शरीर को जिंदा मानते हो, जो कि सच है, तो अब दूसरे तरीके का लॉजिक चाहिए, एक डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक चाहिए। वो तो अभी है नहीं करंट डिस्पेंसेशन के पास में। तो हम कर क्या रहे हैं? टॉर्चरिंग द बॉडी को आप ट्रीटमेंट बोल रहे हो, साइंस बोलते हो। कोई भी दवाई खा के, बुखार आता है आपको इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, आप बुखार कम कर देते हो पैरासिटामोल खा के। उल्टी आती है, उल्टी बंद कर दिया, दस्त आता है, दस्त बंद कर दिया, दर्द आता है, दर्द काट दिया। मतलब आप टॉर्चर कर रहे हो या ट्रीटमेंट कर रहे हो? ये सोचना पड़ेगा ना, कि नहीं सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा तो बच्चे बच्चे बीमार हो जाएंगे हमारे।
भाई कोलोनाइजेशन तभी तक ठीक है जब तक आप जिंदा हो। उसके बाद अगर आपकी जिंदगी पे आ गया तो आपको अपने दिमाग से निकलना पड़ेगा, कोलोनाइज माइंड से तो निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, और हो ही रहा है, हम म्यूटेंट हो चुके हैं। तो डायबिटीज जो बोल रहे हैं शुगर लेवल डायबिटीज होता है, वो तो बहुत कारण से भी हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा अपना देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप प्रोग्राम ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्या करना है, अपनी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। मैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरा काम क्या है, मैं आप लोगों के लिए मेरा जीवन है। स्वामी का जीवन अपना नहीं होता, बाकियों के लिए होता। मैं चाहता हूं आप समझो, और आप समझदार लोग हैं। लेकिन कुछ, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, उसमें कंफ्यूजन है। लंबे समय का डायबिटिक का इंसान, जिसको 25 30 40 साल का डायबिटीज होगा, उसका मसल लॉस होगा ना। सभी डायबिटिक का अल्टीमेटली मसल लॉस होता है। वेट गेन भी किसी का क्यों हो रहा है, पहले वेट गेन होता है क्योंकि मसल लॉस हो रहा है, इसलिए वेट गेन हो रहा है। वेट गेन उसी इंसान का होगा जिसका मसल बिल्डअप नहीं हो पा रहा, जिसके शरीर के अंदर जो चाहिए उसको फंडामेंटल वो बिल्ड नहीं कर पा रहा। तो वेट यानी फैट प्रोटेक्टिव होता है, वो आपको बचा लेगा कुछ समय तक, इसलिए शरीर फैट बढ़ा देता है इनिशियली। बाद में लेकिन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मसल लॉस ज्यादा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो जितने भी डायबिटिक के लोग हैं उनमें मसल लॉस अल्टीमेटली होगा ही होगा। ऑर्गन डैमेज भी जो हो रहा है ना, वो बेसिकली टिश्यू लॉस है। किडनी काम नहीं कर रही, लिवर में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, वो टिश्यू लॉस ही है। इसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपका शरीर कोई कुछ बिल्डअप नहीं कर पा रहा अंदर, फूड को टिश्यूज में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। टिश्यूज में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो इंटीग्रिटी चाहिए, इसे कहते हैं सोम शक्ति चाहिए, वो कमजोर हो गई। तो हम डायबिटीज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सोम दोष। सन और मून ना दो काम करते हैं, सन एक्सपेंशन करता है और मून कंसोलिडेशन करता है। सन आपके भोजन को एक से दूसरी चीज में बदलने की कोशिश करता है। बिल्डअप जो होता है आपके अंदर, वो मून का काम है। जब आप सोते हैं ना, तब आपका शरीर रिजुवनेट करता है, रीजनरेट करता है। हाँ या ना? आपको रेस्ट भी बोला जाता है ना। और यूजुअली ह्यूमन बींग्स के लिए रेस्टिंग टाइम क्या है, जब मून ऊपर हो, जब चंद्रमा ऊपर हो। तो चंद्रमा जो है रीजनरेशन वाला काम करता है, रिजुवनेशन वाला काम करता है, वापस इंटीग्रेट करता है सिस्टम को। वो वाला पक्ष, द इंटीग्रेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इज लेस, कम हो गया। इंटीग्रेटिंग स्ट्रेंथ कम हो गया तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको देखने में क्या आएगी, आप जोर ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। दूसरे पक्ष में बोलूं तो कमजोरी महसूस करेंगे। हां या ना? सभी डायबिटिक लोग कमजोरी महसूस करते हैं कि नहीं? अब इसको हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कुंभक को कोरिलेट किया माइटोकॉन्ड्रिया से। आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस। वहां ग्लूकोज एटीपी में बदलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ग्लूकोज लेता है, उसको एनर्जी में बदलता है। तो हमने देखा विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को ड्रास्टिकली आप इंप्रूव कर सकते हो कुंभक करके। फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन फिरंगी बोलेगा तो हम फट से एकदम से कूदने लग जाते हैं। हमारे देश में कोई बहुत बड़ा काम करेगा ना, तो हमको इतनी वैल्यू नहीं होती। तो दुनिया तो बीमारी होती जाएगी फिर, क्योंकि फिरंगी मूर्ख होता है। 100 साल में म्यूटेंट बना दिया ह्यूमंस को। फिरंगी सबसे मूर्ख होता है। इतनी मूर्खता तो मानवता के इतिहास में कभी हुई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ
पहले दिन आप कुंभक करेंगे, क्या महसूस करेंगे? अरे मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो प्रॉब्लम क्या थी आपको? मुझे वीक फील होता था शरीर के अंदर झांक के। अगर आप ना देखें और ना होता हमारे पास में ऐसा कुछ तरीका जिससे आपके ब्लड टेस्ट में ब्लड शुगर ये सब निकलता, तो डायबिटीज को किसके साथ कोरिलेट करते हैं आप? कमजोरी के साथ कोरिलेट करते हैं ना। और पहले दिन कुंभक करके अगर आपकी कमजोरी ठीक हो रही है तो आपका इलाज हो रहा है ना। और वही तो एनर्जी है जिससे कि आपके ऑर्गन्स भी रिजुवनेट होंगे, रीजनरेट होंगे। वही तो एनर्जी है जिससे कि मेटाबॉलिज्म, आप भोजन को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ आपको अगर बढ़ाना है, डायबिटीज को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एक विराट तरीका, एक बड़ा तरीका सोमदोष बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ खराब हो गई। तीसरा तरीका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो गया। चौथा तरीका आप धक्का देके देखो। जवानी में जब डायबिटीज नहीं थी तब आप पुश करते थे तो ज्यादा जोर लगाते थे, अभी जोर नहीं लगा पा रहे। आपके पूर्वजों को जिनको डायबिटीज नहीं थी उनमें आप में क्या फर्क है? वो ज्यादा शरीर से जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। जोर कैसे लगाते हो? सांस रोक के। यानी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। डायबिटीज का मतलब ये है। तो उस पे तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही कुंभक है डायबिटीज का। अगर आपको अपना प्रोग्नोसिस भी अच्छा करना है, लाइफ आगे की अच्छी करनी है, कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं है। आपके शरीर ने वो इंटीग्रिटी एक टाइम पे बनाई थी, तब तो डायबिटीज नहीं थी आपको। उसी को तो हम वापस स्थापित कर रहे हैं। तो दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट, द ओनली ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, मैं बड़ा रूड लगूंगा बोलते हुए, है ना, मगर स्वामी रूड ही अच्छा। आपके भले के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। आप दिमाग खोलिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, वापस आओ, वापस क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। वापस वेबिनार में आओ, आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आप पहले समझिए, क्योंकि ये आपके शरीर का सवाल है। कल को आपके साथ में कोई डैमेज होता है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है ये बताओ? क्या जिस डॉक्टर के पास में आप जाते हैं आपकी किडनी खराब होगी तो वो जिम्मेदारी लेगा, या आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी, या वो WHO जिम्मेदारी लेगा जिसका प्रोटोकॉल आप फॉलो फॉलो कर रहे हैं? 6.3 HB1AC। वैसे तो वो लोग भी आजकल कह रहे हैं 8.45 से पहले कोई दवाई नहीं खानी। ACP प्रोटोकॉल, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन प्रोटोकॉल 2016, गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिए। वो तो खुद ही कह रहे हैं 8.4 8.5 HB1AC के पहले तो आप दवाई लेना नहीं चाहिए, मगर आपके डॉक्टर फॉलो नहीं करते। यहां पे डॉक्टर्स फॉलो नहीं कर रहे उनको, जो कि भाई उन्हीं का प्रोटोकॉल वो सीखते हैं कॉलेज में जाके। तो पहली बात, डायबिटीज को अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैं और 10 तरीके से आपको डायबिटीज समझा सकता हूं। और हमारे पास में जो भी आता है उसकी एनर्जी लेवल बढ़ना गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। आज मैं बोल रहा हूं कुंभक डायबिटीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम तो 5 साल बाद भी बोल रहे होंगे, 10 साल बाद भी बोल रहे होंगे, मगर आप जहां ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वो बार बार यू टर्न ले रहे होंगे। पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल खराब है, आजकल कहते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है ना। जैसे मैंने बताया कि दवाई खा के शुगर लेवल कम करना जरूरी है। 10 साल के बाद में ये यू टर्न हो जाएगा। दवाई खा के शुगर लेवल कभी भी कम नहीं करना चाहिए। शरीर को निकालने दो उसको। फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि आपने तो वही प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो आप समझिए, क्योंकि आपकी हेल्थ को डेलीगेट मत करो किसी के ऊपर। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको नुकसान कुछ भी हो जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। आपके परिवार भी चाहे तो भी नहीं ले सकते जिम्मेदारी। और आप सभी बहुत समझदार हैं। समझने की कोशिश कीजिए। आंख बंद करके किसी ने कुछ भी बोल दिया, क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए। भारतीय सभ्यता क्वेश्चनिंग सभ्यता है। फिरंगी सभ्यता मूर्ख सभ्यता है। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने पृथ्वी का।
Swamiji, there's a question. I have a HbA1c of 10.2 and fatty liver, third grade. Can I also do Kumbhak? Will it improve my liver function also? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फैटी लिवर, प्लीज अंडरस्टैंड फैटी लिवर। आप फैटी लिवर समझो, अगर आपके शरीर पे कोई केमिकल रगड़ दूं मैं, या आप रगड़ दें, तो जलन होगा, इन्फ्लेमेशन आएगा। उसको ठीक कैसे करेंगे? घी या फैट प्रोटेक्टिव होता है, वो बचाता है आपको, वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। तो आप थोड़ा सा घी लगा लो, जलन कम हो जाएगा। अब बचपन से 2 किलो का बच्चा पैदा होता है, कितने सारे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसके केमिकल्स डालते हैं उसके शरीर में, 22 से लेके 28। हर घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा ना, और आप गर्व करते हैं, देखो मेरे घर में मैंने फर्स्ट एड बॉक्स बना रखा है। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ। आपका शरीर भी तो केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। तो आपको शुगर कम करने के लिए केमिकल ही क्यों खाना है? अरे काढ़े बहुत सारे हैं, नीम, करेला, घिया, ये आपका शुगर लेवल कम कर सकता। तो वो क्यों नहीं खाना आपको? आपको केमिकल ही क्यों खाना? पहली बात। दूसरी बात, चाहे बाहर से आप शुगर लेवल कम भी कर दो, आपके शरीर की शक्ति तो नहीं बढ़ेगी। भाई, भोजन से आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है क्या? 60 साल के हो गए, 60 साल तक भोजन किया, क्या ताकतवर हो गए या कमजोर हो गए? 80 साल के हो गए, 80 साल तक भोजन किया, तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए था, कमजोर ही होते गए। भोजन आपके शरीर की शक्ति तो नहीं बढ़ाती। आपके शरीर की शक्ति लगती है भोजन को पचाने में, जितनी शक्ति होगी उतना भोजन पचा पाओगे। तो उल्टा ग्लास रखा है, सीधा तो करना पड़ेगा आपको, सब कुछ उल्टा सोच रहे हैं। बाहर से शुगर लेवल कम भी कर देंगे तो आपके शरीर की शक्ति उस शुगर को पचाने की तो नहीं बढ़ेगी। डाइट कंट्रोल अगर आप कर लेते हो केवल शुगर कम दिखाने के लिए, तो आपकी लाइफ ही खराब हो जानी है। तो आप अपने शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए, उसके बाद जो मर्जी खाओ। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहां बढ़ा रहे हो, ये बताओ। कौन सी दवाई आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है? कौन सा फूड आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है? कौन सी आयुर्वेदिक दवाई बढ़ाती है आपकी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ? बाहर से कोई भी चीज आपको ठीक करती ही नहीं है। कौन ठीक करता है आपको? आपका शरीर। भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। दोबारा से कह रहा हूं, लिख लीजिए इस बात को, गांठ बांध लीजिए। ईश्वर भी आके आपको ठीक नहीं कर सकते। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर। तो आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा। शरीर में जितना बल होगा उतना ही शरीर ठीक कर पाएगा अपने। और महादेव और पार्वती आपस में बात कर रहे हैं, पार्वती कहती है किम बलम सर्व बलम, जीवित जगत का बल क्या है? और महादेव आंसर करते हैं कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक ही जीवित जगत का बल है। आप सांस रोक के ही कोई काम कर पाते हैं, वरना आप नहीं कर पाए। प्रेशर से ही कोई काम होता है, इसी को वात कहते हैं आयुर्वेद में। प्रेशर से ही इस यूनिवर्स में कोई काम होता। प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है, इसे पित्त कहते हैं। वात पित्त मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके शरीर में। मटेरियल मैनेजमेंट कफ कहा जाता है। तो वात पित्त कफ ये आयुर्वेद का नियम है, और कुंभक आयुर्वेद का राजा है। उसको हटा ही दिया गद्दी से। तो बिना अपने शरीर का बल बढ़ाए ट्रीटमेंट हो सकता है आपका? हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिए इस बात को, गांठ बांध लीजिए। आज नहीं समझ में आ रहा, कल समझ में आएगा। लेकिन मेरा कंसर्न इतना ही है कि कल लेट ना हो जाए, देरी ना हो जाए। तो आप समझिए और सही दिशा में काम कीजिए अपने शरीर। लिवर में जब आप केमिकल डालोगे तो इन्फ्लेमेशन आएगा।
सबसे पहले कोई भी चीज जो आप खाते हैं वो आपके लिवर के थ्रू गुजरती है, क्योंकि लिवर आपके पूरी बॉडी का गेट कीपर है। लिवर में जब केमिकल जाता है तो उसको इन्फ्लेमेशन होगा। अब वो बेचारा कैसे ठीक करेगा अपना इन्फ्लेमेशन? थोड़ा घी फैट के रूप में वो बढ़ाएगा। इसको आप फैटी लिवर बोल दोगे। क्या उसने गलत किया? क्या अपने को बचाना कोई गलत है? क्योंकि आपने उसमें इन्फ्लेमेशन ला दिया। अब वो बेचारा अपने को बचा रहा है थोड़ा फैट बढ़ा के, आप उसे गलत बोल देते हो। ये फैटी लिवर गलत कब से हो गया? कोलेस्ट्रॉल गलत कब से हो गया? हम तो हमेशा कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से बच गए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपके शरीर का, नहीं बढ़ता तो खत्म हो जाता इंसान। कोलेस्ट्रॉल से ही आपके शरीर के अंदर वो सारे स्टेरॉइड्स, बायो स्टेरॉइड्स जो कि आपको बचाएंगे, वो इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स जो कि आपको बचाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल, इसी से जितने हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब बनेंगे जो कि आपको बचाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल को आप गलत बोल देते हो। हम तो घी खिलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, फैटी लिवर ठीक हो जाता है। तो प्रूफ ज्यादा जरूरी है या आइडिया ज्यादा अच्छा है? रिजल्ट अच्छा है या आइडिया अच्छा है? आइडिया ने तो काम नहीं किया 100 साल में। 100 साल में एक आइडिया ने काम ही नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिला। और यहां तो हजारों लोगों का रिजल्ट है। प्रूफ चाहिए कि आपको आइडिया चाहिए? अंग्रेजी के शब्द बोलने में मजा आता है या हेल्दी होने में मजा आता है? ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है, अंग्रेजी के ग्रीको रोमन शब्द बोल दिए, ठीक हो नहीं रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। भाई मैं तो रोज 15 दिन में एक बार तो डॉक्टर के पास जाता हूं। अगर आपको फैशन बनाना है तो वो आपकी मर्जी, सबको अपनी लाइफ का अधिकार है। मगर आपको हेल्दी होना है क्या, ये डिसाइड कर लीजिए पहले। देन यू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट। आप समझिए फैटी लिवर क्यों हो रहा है। और अगर उस कारण को हम हटा देंगे, फैटी लिवर वैसे ही ठीक हो जाता है। कुंभक करके फैटी लिवर बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। कोई चीज जो बहुत आसानी से ठीक होती है, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना के अपनी लाइफ को खराब कर देना, ये कहीं समझदारी नहीं है। Swamiji, is there a connection between diabetes and depression? Because there's a lady who had HbA1c of 7.4, then after medicine it came down to 6.4. Fasting came down from 174 to 137, but still not happy because of certain loss of family members in her life. So, will a course like this help? पहली बात तो ये समझिए कि इफ देर इज एन इंसिडेंस विच हैज हैपेंड, तो अच्छे अच्छे लोग भी उनका दिमाग में ऐसी चीजें बैठ जाती है। पहली बात तो ये बात समझिए। दूसरी बात, डायबिटिक कोई भी हो घर में और कोई हेल्दी हो, अगर हेल्दी डायबिटिक को ऑब्जर्व करेगा तो क्या बोलेगा? डायबिटिक के लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते चीजों को लेके, बहुत जल्दी परेशान नहीं हो जाते, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है ना। झेलने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी नहीं है तो आप क्या सोचते हैं कि मेंटल इश्यूज नहीं है? केवल टैग नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता माइंड क्या, माइंड का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अगर आपकी एनर्जी लेवल्स कम है तो आपके डिप्रेशन के चांसेस तो बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे हमेशा। आप जल्दी चीजों से परेशान होंगे। तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, यू इंक्रीज द एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं ना, उनको भी फायदा होता है, मगर वो पर्टिकुलर तरीके से उस पर काम नहीं कर रहे, थेरेपी नहीं कर रहे। जो लोग योगा करके भी अपने बॉडी को थोड़ा इधर उधर घुमाते फिराते हैं, उनको भी फायदा होता है। पर थेरेपी कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि योगा तो मुक्ति के लिए, समाधि के लिए।
मोक्ष के लिए। लेकिन हाँ, शरीर को घुमाते हैं तो उसमें भी फायदा होता है, सिर्फ शरीर को यूज करते हैं तो फायदा होता है। मगर शरीर को आप यूज कैसे करते हैं? कुंभक से ही करते हैं। बिना कुंभक के योगा नहीं कर पाओगे, बिना कुंभक के आप जिम नहीं कर पाओगे, बिना कुंभक के स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे, बिना कुंभक के वॉकिंग नहीं कर पाओगे। तो कुंभक ही वो असल की है, चाबी है, जिससे कि आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ऐसे लोगों को फायदा हो सकता है? आपको किसी और तरीके से फायदा नहीं होगा। आप ट्राई कर लो। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो पता नहीं कितनी गोलियां खा रहे होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे कम आउट ऑफ देयर मेडिसिन। वो छोड़ देते हैं। जिनको इंसोम्निया हो, तो नींद नहीं आ रही थी, नींद आने लग जाती है। दे आर एबल टू कंट्रोल देमसेल्फ बेटर। दे रिएक्ट टू सिचुएशंस लेस। दे रेस्पॉन्ड। उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। डिप्रेसिव टेंडेंसी इतनी जल्दी नहीं होती। इवन इन्फेक्शन होती है बॉडी में तो जल्दी ठीक हो जाता। अगर कुंभक करेंगे तो किसी को भी वो डायबिटिक फुट नहीं होगा। न्यूरोपैथी रिवर्स होगी। न्यूरोपैथी रिवर्स होने में टाइम लेती है, लेकिन न्यूरोपैथी रिवर्स होगी। रेटिनोपैथी हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये सब हमारे पास में एविडेंसेस हैं। ये ठीक हो जाता। आपका प्रोग्नोसिस आगे चल के, अगर पहली बात तो अगर कुंभक करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आ भी गया बाई चांस किसी को, उनका सर्वाइवल रेट मैं आपको बताऊं 1000% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 1000% से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे पास एविडेंसेस। तो बट यही है कि क्योंकि ये करंट डिस्पेंसेशन से नहीं आ रहा, कोई सरकार नहीं बोल रही, सरकार में बुद्धि कहां होती है? ये जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, आपको लगता है इनमें बहुत बुद्धि है? आप में ज्यादा बुद्धि है इनसे। पढ़े लिखे लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। पढ़े लिखे लोग 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है उनका। तो एक नए दिशा से सोचना, नए तरीके से सोचना, लॉट ऑफ रिसर्च इज नीडेड। हम कर रहे हैं इसमें रिसर्च। हम भी कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं हम अपने मॉड्यूल्स को, और इसको हम करते ही जाएंगे। लेकिन कुंभक जो भी करेगा उस सबको फायदा होगा, गारंटीड। Uh, thank you, Swamiji, for taking our time to answer questions. We are at the uh, closing stage of our webinar. People who suffer from multiple issues, please leave your numbers. Many of you also